Hello everyone, welcome to BSc Live. So today we will discuss few questions regarding English. So before I start my video, I would like to tell you these questions are important for those students who are appearing for state exam, not for the central exam. ठीक है? So just because कि central exam में questions के level थोड़े से अलग आते हैं and इस level के question नहीं आते हैं. So those who are preparing for state level and state exam, so these questions are very good and आप इसको definitely refer कर सकते हो अपने exam के लिए. Okay, so let's begin with the first question, and these all of these questions are mostly of preposition. So preposition is one of the topic जो कि आपके हर state exam में they will definitely and 110% they will ask you. ठीक है? So let's begin the questions. First question is, why do we always have to submit dash his authority? ठीक है? So your options are under, with, for और to. ठीक है? So इसमें पूछा है कि हमें हमेशा क्यों किसी और के authority के अंडर में मतलब किसी के लिए सबमिट करना पड़ता है. Why do we have to submit dash his authority? ठीक है? So इसमें most of the time you might get confused between the option under और to. विथ एंड फॉर तो आप लोग डेफिनेटली इसको एलिमिनेट कर दोगे, राइट. सो द ऑप्शन अंडर इज समथिंग लाइक आप कब यूज करोगे समथिंग जब भी आप ऐसे बोलते हो, राइट, कि द कैट इज अंडर द टेबल. सो समथिंग हैव टू बी कवर अप, राइट. मतलब कोई चीज किसी को फुल्ली कवर करनी पड़ेगी तब जाके आप ये जो अंडर वर्ड है आप उसको यूज कर सकोगे. सो द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है? व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू हिज ऑथोरिटी. ठीक है? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे हैव टू है तो यहाँ पे दोबारा से टू आएगा कि नहीं. ठीक है? यस, यहाँ पे दोबारा से यू कैन पुट टू. सो ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Let's move to the question number 2. The master assured her dash success in the examination. ठीक है? So इसमें क्या है? The master assured her कि master ने assured किया उसका success in the examination. ठीक है? तो the answer should be the master assured her of success. ठीक है? Success के लिए उन्होंने assured किया in the examination. ठीक है? With assured her with success. ठीक है? तो with definitely नहीं होगा just because कि जब आप with लिखते हो उसके साथ, ठीक है, तो मास्टर ने उसको assured किया success के साथ, तो there is no meaning of this sentence, right, when we say this. तो that's why the answer should be the master assured her of success in the examination. ठीक है? Question number 3. My windows looks dash garden. ठीक है? Look upon, look out, look on and look at. ठीक है? So my windows looks डैश गार्डन. जैसे कि अगर आप लुक आउट लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लुक जो है उसके साथ जो प्रपोजिशन आउट है दैट इज ऑल्सो ओके, बट लुक आउट मीन्स व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग. ठीक है? तो लुक एट क्या हो जाएगा? जब आप किसी के ऊपर घूरते हो. ठीक है? तो इस तरीके का मीनिंग आता है जब आप डिफरेंट प्रपोजिशन यू पुट विथ अ डिफरेंट पर्टिकुलर वर्ड, एंड दीज आर फिक्स प्रपोजिशन एंड एवरी प्रपोजिशन विद दिस थिंग इज करेक्ट. बट कब हमें कौन सा वाला प्रपोजिशन चाहिए, यू हैव टू पुट दैट अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस. ठीक है? सो माई विंडो लुक्स अपॉन गार्डन. ठीक है? दिस लुक अपॉन गार्डन, दिस शुड बी योर आंसर. मतलब गार्डन की तरफ दिखता है. ठीक है? देख मतलब वो खुलता है. So next one, question number 4. The reward was not commensurate dash work done by us. ठीक है? The reward was not commensurate किसके साथ? For work done by us? No, for बिल्कुल भी नहीं होगा. On work, on तो definitely नहीं होगा. Upon work, that is also not the answer. Commensurate with work done by us, मतलब जो रिवॉर्ड है जो रिवॉर्ड हमें मिला है वो किसके साथ commensurate कर रहा है? The work which we have done. So answer should be with. Question number 5. Question number 5 is, I don't care dash the expense. I want party to be at real success. ठीक है? I don't care. I don't care इसमें से I don't care of the expense, expense के लिए नहीं, but expenses
को, ठीक है, तो उसमें आप ऑफ नहीं लगा सकते, उसमें आई डोंट केयर विथ तो डेफिनेटली नहीं होगा, एट भी डेफिनेटली नहीं होगा. सो आंसर शुड बी आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, आई want party to be at real success. ठीक है. So whenever you read preposition you have to know the meaning of those little preposition, जैसे कि आपका at हो जाता है, in हो जाता है, by हो जाता है, right, off हो जाता है. तो इस तरीके से आप इन preposition का अगर आप meaning समझ लोगे ना तो आपको आंसर करने में ज़्यादा easy होगा. ठीक है. So that's why accordingly you will be able to eliminate those answer. ठीक है. Question number 6. Vinay does not play cricket and does डैश यशवंत. विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट मतलब विनय क्रिकेट नहीं खेलता एंड यशवंत भी नहीं खेलता है. तो यहाँ पे जब भी डज आ जाता है, ठीक है, मतलब जब ये कर रहा है तो ये भी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है तो मतलब ये भी नहीं कर रहा है, राइट. सो इस केस में सो अगर आप लगाओगे एंड डज सो यशवंत, बिल्कुल भी नहीं जाएगा आपका ये आंसर. नेक्स्ट वन ऑल्सो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा. ईदर मीन्स दोनों में से कोई एक, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल है, विनय एंड हु, यशवंत. सो Vinay does not play cricket and does neither Yashwant. So your answer should be option number D. Hopefully all these questions are understandable. And if you have any doubt regarding any of the question, please put them down in the comment section below. Question number 7. They leave dash द फिफ्थ फ्लोर. ठीक है. सो इन तो आप लोग डेफिनेटली नहीं डालोगे, ठीक है, एंड टू भी नहीं डालोगे. यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑन एंड एट. ठीक है. सो एट हमेशा आप तभी यूज करोगे जब आप कोई पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए मेंशन करते हो, जब जैसे कि आपका शॉर्ट पीरियड टाइम होता है, ठीक है, तब आप एट को यूज करते हो. जैसे कि आई एम एट दी shop या फिर I'm at the coffee shop just means you are not entered in the coffee shop but you are waiting for someone at the coffee shop. जैसे कि आपका कोई भी लैंडमार्क होता है, राइट, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें आप ऐड करते हो. सो जब भी आप किसी चीज़ को रखने के बारे में बात करते हो सो यू ऑलवेज पुट ऑन, मतलब किसी फ्लोर पे, राइट. जैसे कि माई बुक इज ऑन द टेबल नॉट एट द टेबल. ठीक है. तो उस केस में आप ऑन का यूज करोगे. दे लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर. सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर आंसर. नेक्स्ट वन, माई कजन विल अराइव डैश संडे. इन संडे नो, एट संडे नो, द संडे तो बिल्कुल भी नहीं. दिस इज योर प्रपोजिशन, बिल्कुल नहीं. सो योर आंसर शुड बी, जब भी ये ऐसा होता है ना कि जैसे कि ऑन जो है यू कैन यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, बट स्पेसिफिकली अगर डेट है या तो फिर डे है ना, या फिर मंथ है, ऐसे टाइम पीरियड के बारे में जब भी आप बात करते हो यू राइट ऑन. ठीक है. सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. माई कजन विल अराइव ऑन संडे. ठीक है. Next one, question number 9. The boys went inside dash room. ठीक है. The boys went inside dash room. So इसमें से of the room नहीं हो सकता है, right? इसमें to the room, the boys went inside to the room बिल्कुल भी नहीं. ये दो वाले preposition तो बिल्कुल नहीं आएंगे. The boys went inside the room. ठीक है. This is not a preposition, but as we need to learn where we should put preposition, at the same time we should know where we should not put preposition. ठीक है. So we should put article here, inside the room. The boys went inside the room. Next question, my younger brother is, it should be here. My younger brother is good dash math. ठीक है. So as I have mentioned कि जब भी हम लोग at का यूज करते हैं for short period of time, but एट द सेम टाइम वी यूज, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को शो कर रहे हैं, राइट, आई सेड कि हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज को भी अगर शो कर रहे हैं देन ऑल्सो वी यूज द वर्ड एट. ठीक है. तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका आंसर, माई यंगर ब्रदर इज गुड एट मैथ्स. ठीक है. सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए. होपफुली ऑल द क्वेश्चंस आर अंडरस्टैंडेबल एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. अगर कोई भी क्वेरीज होगी यू कैन डेफिनेटली पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.